حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے۔ معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق ہے۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جی تو ساتھیو غور کریں کہ جب بندہ راہ خدا میں نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اپنے شعر میں فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، ہے نا؟ مگر افسوس ہے آج ان دیندار جماعتوں پر جو جمہوری نظام کے آگے سجدہ ریز ہو چکے ہیں، اس کا حصہ بن چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کافروں کے نظام کے ذریعے ہم اسلام کو نافذ کر لیں گے۔ کتنی بڑی یہ حماقت ہے، وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو بھی انہوں نے گمراہی پہ اپنے ساتھ پیچھے یکجا کر لیا ہے۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ جی بے شک یہ جو وہن کی بیماری ہے یہ مسلمانوں کو کافروں کی غلامی اختیار کرنے کے بعد ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں اپنی نسلوں کو بچوانے کے بعد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جی ہاں ساتھیو، یہ وہن کی بیماری جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمائی وہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت آج ہمارے اندر گھر کر چکی ہے اور موت کے نام سے بھی آج ہم لرز اٹھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو ہم گھروں سے باہر دوڑتے ہیں، تو ہمیں در حقیقت اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ اپنی موت سے ڈرتے ہیں کہ موت نہ آ جائے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا۔ ساری زندگی عمر فاروق بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے۔ اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈرا رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 ہی لے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟
क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तो जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में। यहाँ पर बहुत एक गौर तलब बात है, इंतहाई तवज्जो से समाअत करें कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़ीम में सहाबी आए अपने 4 बेटों को लेकर के कि आप काफरों के साथ लड़ने जा रहे हैं तो मेरे बच्चे भी और मैं भी साथ जाऊंगा। गौर करें, काफरों के साथ जहाज में जा रहे हैं और 4 बेटे पेश कर रहे हैं और ख़ुद को भी पेश कर रहे हैं, है ना। और आज हम लोग अपने 4 क्या अगर 20 बच्चे भी हैं, एक भी बच्चा है तो वो हम काफरों को दिया हुआ है कि भाई ये काफर हो, तुम इसे काफर बनाओ, इसको अपनी वज़ा कता फ़िक्र अमल तहज़ीब तमद्दन मईशत मुआशरत पूरे सिस्टम में इसको फ़िट करो और इसको अपने निज़ामों का पाबंद बनाओ। ये लो हमारे बच्चे और अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन का दुश्मन बनाओ। आज हम बच्चे अपने हाथों से अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भिजवाते हैं और वहाँ पर वो क्या बन चुके हैं, किन के मुहाफ़िज़ बन रहे हैं, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। एक तरफ वो है सहाबा कराम का अमल कि काफरों के लिए नफ़रत और जहाद के लिए तैयारी, और यहाँ पर काफरों के लिए मोहब्बत और काफरों के पूरे निज़ामों के हिफाजत पर मामूर। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। का महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूँ, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाज़री लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूँ, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहाँ खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। ये थे वो मुसलमानों के जज्बे जिसकी वजह से, जिसके सबब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर मैदान में फतह अता फरमाई। और वो काफरों के लिए नंगी तलवार हुआ करते थे, अल्लाह के दुश्मनों से इस कदर वो नफरत करते थे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ तक है कि सहाबा कराम अपने जो तन के कपड़े हैं वो भी काफरों के तन के साथ मस नहीं होने देते थे। मगर आज हम पता नहीं क्या चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। वो इकबाल जो फरमाते थे ना कि नई नई लग रही हैं आँचें, ये कौम बेकस पिघल रही है, ना मशरकी है ना मगरबी है, अजब सांचे में डल रही है। फिर फरमाते हैं और अहले कलीसा का ये निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत तीनों मरबत के ख़िलाफ़। गला तो घोंट दिया स्कूल और कॉलेज ने तेरा, अब आए कहाँ से सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, उहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफ़ा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूँ, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते हैं। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बन ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा,
जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। आज की माओं को इबरत पकड़नी चाहिए, गौर करना चाहिए और ऐसी तरबियत अपनी औलाद की करना चाहिए कि वो हर वक्त जज्बा जहाद उनके अंदर उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा हो और वो अल्लाह की राह में हर वक्त एक सिपा सलार की तरह हर वक्त तैयार हों, बेकरार हों कि अल्लाह के दुश्मनों के साथ लड़ाई करके परचम इस्लाम को हम लोगों ने गालिब करना है। मगर अफसोस आज जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगी हुजूर खामन फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी। महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा, उतना इसे भी देना। भाई ये जज्बे थे, ये रंग था उम्मत मुस्लिमा का, इसलिए काफिर घर में बैठ के कांपा करता था। अब उसे पता है ये एसी वाली कार से नहीं निकल सकते, उसे पता है कि हमने इन्हें बोतल पे लगा दिया है, अब ये पेप्सी मरिंडा और ये पी के खाने के साथ तो ये मस्त रहते हैं, अब ये नहीं निकल सकते घर से, हमने इन्हें उन चीजों पे लगाया है जो इनके वजूद को खोखला कर रही, अब कैसे मैदान में निकलेंगे? वो इसलिए नहीं डरता कि वो तेरी आसाइशों, तेरी जिंदगी में आने वाली सहूलतों से आशना है। मौत बिस्तर पे भी आ जाती है, लेकिन जिसको मैदान में आती है वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है, वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है। भाई मरना तो है, लेकिन अगर जिंदगी दीन के काम आएगी तो अमर हो जाओगे। जी तो साथियों, आज गौर करना है और इंतहाई तवज्जो के साथ गौर व फिक्र करना है कि आज जितनी भी नाम नहाद मजहबी जमातें, तहरीकें, तंजीमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो काम कर रही हैं, ये काफरों के नक्शे कदम पर चल के दीन बयान कर रही हैं, ये काफरों के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। अगर ये सच्चा और सुच्चा दीन बयान करने वाली होती, हक कहने वाली होती, तो काफर को एक आंख ना भाती, मगर कुफार ने इन्हें अगर अपने साथ जोड़े रखा है तो फ़कत इसलिए कि ये उनका मन पसंदीदा दीन बयान कर रही हैं। क्यों? वो काफर को अपनी हुकूमत मकसूद है, अपनी तालीम, तहजीब, फ़िक्र व अमल, कवानीन और उनकी तमाम जितनी मशीनरी है उसको वो समूथ तरीके से वो अगर वो चला रहा है ना, तो इन्हीं उलमाए सू की वजह से कि जो पूरी दुनिया में दीन का काम तो कर रहे हैं मगर हक का प्याम नहीं दे रहे, कुफर के खिलाफ सीसा पगलाई दीवार नहीं बन रहे और दुनिया की मोहब्बत इनके अंदर घर कर चुकी है। आसाइशों, राहतों और दीगर दुनियावी सहूलियात ने इनको अंधा, बहरा, गूंगा और लंगड़ा कर दिया है। आज यही वजह है कि काफरों की पूरी दुनिया के ऊपर अगर हुकूमत अगर हमें नज़र आती है तो फ़कत इसलिए कि मुसलमान के जितने भी उलमा हैं वो काफरों के साथ जुड़ चुके हैं, सरकारी वो मौलवी बन चुके हैं, उनके मन पसंदीदा दीन को बयान करते हैं और मुसलमानों के अंदर सिर्फ दुनिया की मोहब्बत को रास्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जो भी जमात, तंजीम, तहरीक, जमहूरियत के साथ जुड़ती चली जा रही है, वो समझ रहे हैं कि वो काफरों के निज़ाम के आलाकार बनती चली जा रही है और कुफार के सामने सजदा रेज़ होकर उनके निज़ामों को महफूज करती ही चली जा रही है। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत मुस्लिमा में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा सिपा सलार अता फरमा दे, जो परचम इस्लाम को बुलंद करे और मिल्लत इस्लामिया का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।